Hello everyone. This is Sir Inkesh Mamrawala, a practicing chartered accountant from Surat, Gujarat. Here I am going to present my AICA Level 2 capstone project, which is on the topic of GST reconciliation. There is reconciliations between books data with GSTR 2B. Now, nowadays, from January 2022, the one rule has come in GST law that the ITC will be flow 100% from the GSTR 2B. But due to various practical problems and challenges, we we cannot solve 100% ITC from GSTR 2B. So to and due to some practical challenges, there are some differences that arises. So to come up with this to come up and avoid these discrepancies and to differences, the reconciliation is a very much needed work from the taxpayer part and to professional parts, on the part of the taxpayers and professionals. So if a practicing chartered accountant or a tax professional handling the compliance practice, he must ensure that the client's ITC must flow from the GSTR 2B and should always be matched with the books. But it is not 100% possible to match, or it is not 100% available that all the data are matched with books or GSTR 2B or vice versa. So we must need to prepare a reconciliation statement, and in this exercise we are spending our very much time to the ensure that no ITC should be missed from the books or the 2B, and to avoid the unwanted scrutiny we have to do this exercise every month, at every year while filing GSTR 9, and every month while filing GSTR 3B. So to come up with this issue, I have come up with a solution, namely GST, with a tool, namely EasyRecon, to reconcile the data between books and GSTR 2B. So now I am going to demonstrate my tool, which has been developed by using a Python code. So now it is my tool, namely EasyRecon. This is the name of EasyRecon. This is a GSTR 2B reconciliation. It is an offline tool and it is a secure, because data privacy is a very much needed priority nowadays. So to ensure the data privacy, I have tried to make an offline tool rather than to online tool, various available in the markets. But this is an offline tool and this is secure. This is work on your local machines, on your LANs, link PCs. It is totally offline and totally on your machines it will be work. So there is no issue of data privacy, data loss, or data theft or data privacy issues. So this is a tool in which I have make some demonstration about the data available with me. To reconcile this data, I have made two files, that is a books data and GST portal data. Okay, so I have make a folder, namely data, and in which I have put that two files. This is here. This is books data and GST portal data. It is the data which is generated from your ERP packages or various softwares available in the market, like Tally, SAP, or even though Tally, SAP, like ERP packages. So this can be from any software. You can generate your purchase data, purchase register, and then put it here, and the name should be books.
and this is GST portal data which is we are downloading every month on 14th. This is GSTR2B. Now this is been stored in this data folder. Now I have to just keep select this folder, and now the change color has been changed to red to green, that the file has been received to the tool. Now just I have to click run reconciliations. It is nothing to do with anything, and just chill. The data reconciliation has been done within 2 seconds. There is 33 has been start, 34 he has made some analysis, and now he is writing the Excel file which is a report that how what kind of differences has been arrived, what kind of tax mismatch or data. So this is reconciliation has been completed, and he has given it has given a report that 32 invoices are in the books of accounts, which is given here, and out of 32, 24 invoices are the exact match. Missing in portal 0, as I have uploaded the limited data from books of accounts, so there is an total data from GST portal data. This is GSTR2B. Now there is tax mismatch in 8 invoices, which is about 13,406. Now the report is already saved in the location where I have from where I have taken the data of these two file 2B and books data. जहाँ से मैंने ये फाइल उठाई थी वहाँ पर ये डेटा आउट सेव हो चुका है, और वो पूछ रहा है क्या ओपन नाउ. सो इफ़ यू वांट टू ओपन यू कैन जस्ट क्लिक द ओपन बटन, यस, एंड बिंगो दिस फाइल इज गोइंग टू ओपन नाउ. Also there is a summary is given on the tool. Now we are coming with this. Yeah, so the tool has created the DAX this file, and also prepare a pie chart like missing in books and missing in portal and tax mismatch. तो all the things यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया है एक्सेल में. Also he has given the details about कौन से टैक्स हेड में कितना डिफरेंस है, उसका स्टेटस क्या, अगर मैच है तो पूरा मैच हो गया है, जहाँ 0 डिफरेंस है. और फिर यहाँ पर उसने टॉप 5 आप सप्लायर्स की लिस्ट भी बना के दे दी है, और ये टॉप 5 का चार्ट भी है जिसमें ये टैक्स गैप कितना है वो उसने बता दिया है यहाँ पर. लेकिन टॉप 5 में कोई गैप है नहीं, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है बेसिकली. अगर उसमें होता तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू कंसर्न. नाउ जो इन्वॉइसेस मैच हो चुके हैं वो इन्वॉइस की डिटेल्स यहाँ आ चुकी है. ये जो 32 इन्वॉइसेस मैच हो गए वो सारे डिटेल्स यहाँ आ चुकी है. जैसे यहाँ बुक्स का एक्सेलेस आ गया, यहाँ पोर्टल का एक्सेलेस आ गया, और यहाँ पर उसने कंपैरिजन दे दिया जिसमें टैक्स का डिफरेंस है, आईटीसी अवेलेबल है, ये ठीक है. बट ये यहाँ टैक्स डिफरेंस इसने बता दिया है, जहाँ पर टैक्स गैप है वो दिखा दिया है, ये रहा. तो ऐसे करके वो टैक्स गैप भी बता दिया. यहाँ सप्लायर वाइज एनालिसिस दे रखा है, कितने सप्लायर के कितने इन्वॉइसेस है पोर्टल पे अवेलेबल, यहाँ पोर्टल का डेटा दे रखा है. ये पोर्टल पे कितने इन्वॉइसेस अवेलेबल है, उसमें से जो बुक्स में अपने ने अपलोड किए वो कितने मैच हो चुके हैं, टोटल टैक्स अमाउंट कितना है पोर्टल के ऊपर, ये सारी पोर्टल की डिटेल्स है. यहाँ पर CGST SGST, यहाँ पे IGST है तो IGST है. और यहाँ पे जहाँ जहाँ जो इन्वॉइसेस अपने अवेलेबल थे उसमें से कितना जो मैच हो चुका है, तो जो मैच का अमाउंट है वो डाल दिया. उसमें कुछ डिफरेंस है तो वो डिफरेंस यहाँ दिखा दिया. जहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है वहाँ उसने 0 रिफ्लेक्ट किया है. नाउ टैक्स एनालिसिस बता रहा है कि कितने आपका बुक्स में टैक्स बताया हुआ है, बुक्स के अंदर टैक्स इतना आ रहा है, पोर्टल के अंदर टैक्स जो मैच हुआ वो इतना है, इतने इन्वॉइसेस के सामने मैच हो रहा है, और उसका डिफरेंस ये यहाँ बता रहा है. और यहाँ पर उसका भी एक चार्ट बना के दे दिया हुआ है, पाई चार्ट भी बना के दे रहा है. अब मेन पार्ट है जो अपने कंसर्न का है, काम का है, वो ये सब डैशबोर्ड आइटम्स थी. तो डैशबोर्ड एनालिसिस और डैशबोर्ड आइटम्स यहाँ पर दे रखी है. जो मेन इंपॉर्टेंट आइटम है ये है कि बुक्स में है लेकिन पोर्टल पे नहीं है. तो ऐसे कोई इन्वॉइस यहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने बुक्स का डेटा बहुत लिमिटेड अपलोड किया था बेसिकली. सो बुक्स में है और पोर्टल में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. पोर्टल पे है और बुक्स में नहीं है, वो ऐसा डेटा है यहाँ पर जैसे. तो वो इसने यहाँ बता दिया कि आपका इतना डेटा है, और वो एज इट इज़ उसने GSTR2B के फॉर्मेट में यहाँ पे डाल दिया है. नाउ टैक्स मिसमैच, जो अपने ने 8 इन्वॉइसेस आइडेंटिफाई किए उसने, तो वो 8 इन्वॉइसेस का डेटा यहाँ डाल दिया है.
कि जिसमें बुक्स का टैक्स इतना है, पोर्टल पे टैक्स इतना आ रहा है, यहाँ पे मेजर डिफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ 3600 पोर्टल पे दिखा रहा है 7200 रुपये, और यहाँ पे इसने 67, मतलब बुक्स में गलत एंट्री कर रखी है। तो हो सकता है सामने क्रेडिट नोट हो, तो वो क्रेडिट नोट के अंदर निकल गया हो, क्योंकि मैंने क्रेडिट नोट अपलोड नहीं किए हैं तो वो यहाँ पर हो सकता है ये डिफरेंस में दिखा रहा है। नाउ द फजी मैच, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कई बार क्या होता है, जैसे इन्वॉइसेस के अंदर डेटा एंट्री के टाइम बुक्स के अंदर कुछ मिस्टेक हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने लिखते हैं वेंडर के इन्वॉइस पे लिखा है GST/2526/001, लेकिन अपने बुक्स में एंट्री कर दी GST/001। तो काफ़ी बाकी से टैक्स अमाउंट, GST नंबर सब मैच कर रहा है, बट ये चीज़, दो चीज़ें डिफरेंस में आ रही है। GST का इन्वॉइस नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो परसेंटेज ऑफ मैचिंग बताएगा कि जैसे 92% हो रहा है, 95% हो रहा है, तो आपको बस वो जाके और क्या मैच जो मिसमैच फील्ड है वो यहाँ पे वो दे देगा A और B में, और C में वो दिखा देगा कितना परसेंट मैच हो रहा है। तो जो मिसमैच आइटम है वो आप जाके रेक्टिफाई करके फिर वापस वो बुक्स वाली फाइल के अंदर डेटा पेस्ट करोगे या जनरेट करोगे, देन वापस ये टूल रन करोगे तो वो आपको मैच करके दिखा देगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में ऐसा है कि ये टूल के अंदर एक और फीचर दिया है यहाँ पर। जैसे यहाँ से ये मानो कि अभी ओपन कर लिया, आप भूल गए कि कहाँ पर ये स्टोर किया था, तो ये और एक चीज़ देता है टूल कि आप यहाँ से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो रिपोर्ट क्लिक करने से। जैसे ये रहा, जैसे अभी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी एक फीचर है, बटन ऐड किया हुआ है टूल के अंदर। तो ये देखिए आपका यहाँ ओपन हो गया एज इट इज़ वो रिपोर्ट जो मैंने टूल के थ्रू जनरेट करवाई थी। उसके बाद ये एक वेरी इंपॉर्टेंट आज की ऑडिट ट्रेल का जो चलान है उस हिसाब से ये टूल में मैंने ये एक और फीचर भी रखा हुआ है जिसमें आप लॉग भी इसका सेव कर सकते हो। इवन आप जैसे ही ये रिकॉन्सिलेशन कंप्लीट होता है तो इसका लॉग सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली आपके डेटा फोल्डर के अंदर। ये देखिए, जैसे मेरा डेटा फोल्डर है तो इसमें ये लॉग ऑलरेडी सेव्ड हो चुका है, ये देखिए, और TXT में ये ओपन भी हो जाएगा। तो ये लॉग रिपोर्ट है। देखिए जैसे मैंने 23/2 आज की डेट में स्टार्ट किया है, 33 सेकंड पर ये इसने चालू किया सिलेक्ट करके प्रोसेस करना, और ये देखिए पूरा यहाँ पर दिखा देता है ये पूरा लॉग, और यहाँ पर रिकन्सिलेशन कंप्लीट हुआ है। अगर अनसक्सेसफुल है या एरर है तो वो भी दिखा देगा। यहाँ उसका रिपोर्ट भी आपको देख सकते हैं, जैसे गैप दिखाया था 13,406 रुपये का, यहाँ 1066 मैंने पोर्टल का डेटा अपलोड किया, बुक्स का डेटा 32 इन्वॉइसेस किए। अब जब भी आप ये करोगे ये ऐड इसमें होता जाएगा। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट टूल का फीचर इसलिए भी है क्योंकि समहाउ कई बार क्या होता है कि अपने ऑपरेटर्स होते हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, वो बैक डेट में जाके इन्वॉइस को मॉडिफाई कर देते हैं। तो इन दैट सिचुएशन भी ये एडिट लॉग जो फीचर है, लॉग का फीचर है, वो यूज़फुल होता है। तो यू कैन जब भी विद आप रिकन्सिलेशन रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कब चेंज हुआ है इसमें, बेसिकली कि कौन सा पार्ट चेंज हुआ है। तो ये भी लॉग से आप आइडेंटिफाई, मतलब ये ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए एक वेरी यूज़फुल फीचर है एज ऑफ नाउ, क्योंकि डिजिटल एरा में जी रहे तो लॉग तो मेंटेन करना ज़रूरी ही है। उसके बाद ये एक और है, किसी को टूल का व्यू पसंद नहीं आता, जैसे किसी को ब्लू, ये जैसे डार्क नेवी है, ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो अभी मैंने पाइवोटियल में ये बेसिकली एक कुछ सैम्पल कलर्स रखे हुए हैं, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू चेंजिंग इन कोडिंग। तो इसको लाइट प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, जैसे ये लाइट प्रोफेशनल हो गया। उसके बाद ये ओशन टील भी कर सकते हैं पूरा, जैसे यूज़र्स को पसंद है उस हिसाब से ये हो जाएगा। कलर, यहाँ कलर पैटर्न्स भी चेंज कर सकते हैं, कितना परसेंटेज क्या रखना है उस हिसाब से। और यहाँ पर ये जो लॉग फाइल आप जनरेट करें उसके फॉन्ट साइज़ क्या करनी है वो भी आप यहाँ से सेव कर सकते हो, यहाँ दिख जाएगा वो, जैसे ये यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो गया। तो ये जो एक्टिविटी लॉग है उसका फॉन्ट साइज़ भी अपने चेंज कर सकते हैं। सो ये आज की डेट में काफ़ी यूज़फुल टूल है, क्योंकि ये अपना ऑलमोस्ट हाँ आधे दिन का काम या एक दिन का या 2 दिन का, किसी की यहाँ डेटा यूज होता है तो 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। कई बार अपने पास लास्ट मोमेंट पे GSTR3 भी आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिकॉन्सिलेशन। तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम दिस टूल इज़ वेरी मच नीडेड इन nowadays. So this is very useful tool to the business
owners, accountants, tax practitioners, tax professionals, consultants. This is for each and every person who are dealing with the GST compliance practice nowadays or is in the GST regime. जिसके पास GST नंबर है उन सबके लिए ये टूल वेरी इंपॉर्टेंट है. सो ये टूल का बेसिकली पर्पस ही यही है, गोल ही यही है कि लोगों का काम आसान किया जाए. नाउ हम चलते हैं अभी इसके टेक्निकल पार्ट पे. सो हाउ आई बिल्ड और डेवलप दिस टूल. मैंने ये टूल बनाया कैसे, ये जानने में भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बेसिकली आई एम नॉट अ टेकी गाई और आई एम नॉट अ टेक बैकग्राउंड पर्सन. तो मैंने ये टूल कैसे बनाया, तो ये टूल बनाने के लिए मैंने 3 LLMs को यूज़ किया हुआ है. 3 LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मैंने यूज़ किए हुए हैं. फर्स्ट है जेमिनी AI. मैंने उसको बेसिक प्रॉम्प्ट दिया और उसको बोला कि मुझे एक प्रॉम्प्ट राइट करके दे कि मुझे ऐसा टूल बनाना है. उसने एक प्रॉम्प्ट बना के दिया. वो प्रॉम्प्ट को एनहांस करने के लिए मैंने ChatGPT को यूज़ किया. ChatGPT में जाकर उसको मैंने बोला कि ये प्रॉम्प्ट को एनहांस कर दो, जिसमें ड्यूरिंग 5 days ट्रेनिंग ये प्रॉम्प्ट एनहांसर भी हमसे डेवलप करवाया गया. तो वही प्रॉम्प्ट एनहांसर मैंने यूज़ करके इसको एनहांस किया, क्योंकि वो प्रॉपर कोडिंग कर सके. जो तीसरा LLM है वो, तो मैंने ये एनहांस प्रॉम्प्ट लिया और उसको प्रोवाइड किया क्लॉड AI को कि भाई तू क्लॉड AI को बोला कि आपको ये प्रॉम्प्ट के हिसाब से पाइथन कोडिंग में पाइथन का कोड बनाना है जिससे मेरा ये टूल डिज़ाइन हो सके. फिर क्लॉड AI में जाके मैंने डिफरेंस जैसे डैशबोर्ड क्रिएट करना था, या फिर इसमें कोई बटन ऐड करने, जैसे ये ओपन रिपोर्ट का था, सेव लॉग का था, यहाँ ब्राउज बटन, तो उसको मैं ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्ट करता गया जो जो चीज़ें चाहिए थी, और उस हिसाब से क्लॉड ने मुझे ये बना के दिया लास्टली. सो इट इज़ लिटल बिट टाइम टेकिंग बट एट अ टाइम ऑफ डेवलपमेंट, बट एक बार बन जाएगा तो ये एकदम ईजी हो जाता है. सो आई होप दिस टूल विल बी अ लिटल स्टेप टूवर्ड्स the business process automation and to reduce, main focus is to reduce the time of the tax professionals so that they can focus on their tax consultancy practices or litigation practices or some other areas on which they are relied upon. That's very useful to them. So ये टूल का पर्पज़ यही है कि आपका ये जो बेसिकली ऑपरेशनल जो टाइम जा रहा था उसको रिड्यूस किया जाए, और बेसिकली जो कंसल्टेंसी वर्क है या फिर कोई अदर प्रैक्टिस एरिया है जिसके ऊपर प्रोफेशनल्स फोकस कर सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूल्स एंड बेसिकली इसमें इसका इंफॉर्मेशन भी दे रखा है कि कैसे है, इसका वर्जन क्या है, इसमें फजी रैपिड ये सब यूज़ हुआ है. इसमें इंफॉर्मेशन भी है, ये आ गई इंफॉर्मेशन. इसके अंदर इसका फोकस लॉग भी है, सेटिंग्स भी है जिसमें कॉलम आप सेट कर सकते हो, और आउटपुट का नाम भी चेंज कर सकते हो. यहाँ से आउटपुट फाइल का नाम चेंज करना है आप कर सकते हो. यहाँ मैंने फजी मैच जो थ्रेशोल्ड रखा है वो 85%, मतलब 85% के अबोव जो मैच होगा उसी को, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी पकड़ सकता है. आप उसको 90 भी कर सकते हो, 95 भी कर सकते हो, कि आपको वही पकड़ना है. तो ये सारी चीज़ें टूल्स के अंदर अवेलेबल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूल्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, and I'm very thankful to you for listening to me and watching this. Thank you.